Good afternoon, everyone. How are we doing? Good. So everyone is here? Yes, ma'am. Okay, let's very quickly start the session. We will first recap what we were talking about yesterday. Remember, what did we We are talk good, about? ma'am. Yes, Ruchi? We talked about foundational literacy, right? If you remember. And we talked about phonics, yes? Ma'am. And we learned about what are the different sets of words और हमें वो sets of words किस flow में किस pattern में बच्चों को introduce कराना चाहिए yes तो हमने कौन कौन से Yes. set of words कल read किए थे किनके बारे में जाना था Hello. give me the names give me the categories we learned about first digraphs. Digraphs, phonics, drill. Give me the example of digraphs. What are the examples of digraphs that we learned? Two vowel sounds. Say again, Lakshmi. I missed Two, you. two vowel sounds, ma'am. Two vowel sounds, yes, and two consonant sounds, Two consonants, Consonant ma'am. sound. Yes. right? So we talked about the digraphs. Very good. Examples are ch, sh, th, v, k, ck, right? And Hello. we Yes, did ma'am. some examples, okay? Yes, ma'am. And then we talked about diphthongs, right? When two Yes, vowel sounds and the voice and the sound glides, yes. like qua, ow, Sound, ground, sound. coin, okay? Then we Yes. also talked Sound. about Are blends. yes. Blend is bl, st, cr, crab. When two consonants, they make individual sounds. Okay, in the digraph, the sound gets one C and H, ch sound, not k, h, k. It's not like that. They make one Yes. sound, but in the blends, you hear the आपको हर एक लेटर की आवाज सुनाई देती है, right? Crab, blend, Fire, sprite, train, train, very good. trip, trip. Trip, tra, right? T and r. You could hear Yeah. both the sounds, so that's a Yes, ma'am. blend. Then we talked about R control vowels. What did we say? That when R comes behind any vowel, then the sound of the vowel changes. So it is car, R as in car, right? Yes, Then ma'am. R as in eraser, burger. Remember? And then what we didn't discuss yesterday, which we are going to discuss and finish the set of words, is magic of E. What is magic of E? Anybody has an idea? हमने इसके बारे में बात करी थी. So I want you to write these letters on your paper. Make a T chart. T chart, you know, fold the paper into two. Make a T chart, fold the paper into two. And please turn on your videos, may I request you. So on the left hand side, I'm going to give you some words. Please write down
Write them down. At. What does it become? At. Mat. Write down Ma. mat, please. Lakshmi, write down mat. Aarti, Jeenat, everybody write down mat on the left side. Now, next word. Ad. Ad. What does it become? Blend. Ma. Mad. 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 Write down mad. Now, again, hear the sound. Mad. At. Mad. No, please hear the sound again. At. Fat. Very good. Write down fat. Done. Now, after all these words, write down E. Add E at the last. You have three words, three CVC words. Mat, mad, and fat. After each word, write down E. Make it a 4-letter word. Yes, ma'am. Now say the word. Gina, Mate. mate. Who's a mate? Mate is a partner, Partner. right? Friend, Maid. partner. Second one, maid. Maid. Very And third good. word, fate. 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 Fate is luck, kismat. Yes, So ma'am. did you see the magic of E? Yeah, The ma'am. CVC words, but the moment you added E, the vowel sound became longer. The vowel sound of A became longer. Mad became made, mat become mate, and fat become fate. What is that? That is called magic of E. So when E is at the last, then the sound of the vowel would be longer. Right? So these are some of the patterns. We also discussed about the k digraph yesterday, that if there is behind every vowel sound, if you hear the k sound, it is ck, not c or k. Remember? Duck, buck, all these words. Yeah? Truck. So everybody got it? And Yes. are we teaching the children in the alphabet order, or are we teaching in the cluster of sat pin? Cluster of fat pin. Thank you, Lakshmi. Thank you so much. Why are we doing that, Lakshmi? Why are we teaching in this order of vowels coming after Yeah. every cluster? As per the NEP process, we need to go SAT pin process. Yeah, why? But because this is more research based, child will be able to form words, Yes, ma'am. right? He'll be able to make words. Yes. When he does ABCD, he is not able to make words. Now, then after this, we had all talked about sight words. I asked you take out a Dolch list of words and start selecting that which all sight words would you start teaching to your children. अगर आपके पास बच्चे नर्सरी में हैं, LKG में, तो आप उनको कौन से वर्ड्स इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट?
because most of these words, many of them, in fact, are used for making a sentence, but many of them are not really phonetic, right? And this is an example of your sight words that we discussed yesterday. That's how we have to introduce the sight words, right? And how we have to start blending and segmenting. What did we say yesterday? When the children are reading, they are encoding, right? And when they're writing, they are decoding, they're segmenting. Okay? So these are the principles: segmenting, blending, decoding, and encoding. If you want, please take a picture. Very important for you to remember. And now let's come to a very important aspect. जब हम sight words की भी बात कर रहे थे, we were trying to make the child read the sentences, meaningful words, meaningful sentences. We talked about conventions of writing. So you start with the capital, leave one finger space, and you end with the period. That is your full stop. Right? हमको बच्चों को by the time they are in grade, they are 5 year old, we have to teach them the conventions of writing. Does that make sense? Now the question is that how will we continue with the phonemic awareness in smaller children like a 3 year old? So we have done lot of activities. मैं फिर से आपको ये दिखा रही हूँ. Look at these activities and tell me कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हो. Give me one example. Can you see some words here? Yes, ma'am. How can you use these kind of activities to teach your children about sounds, to create phonemic awareness? Say, for example, if the child is 3 years old, how will we use this? मैम स्नेक यूज कर सकते हैं हम. स्नेक, सन. Oral, How? oral practice only will. How will you do that, Jean? What will you ask them to do? These are just pictures. जीनत, आप उनको क्या बोलोगे करने को? यस मैम. फोनिक साउंड रिकग्नाइजेशन मैम. तो वो कैसे जैसे कि करेंगे रिकॉग्नाइज? जैसे कि उनको बोला जाएगा और बॉडी लैंग्वेज के साथ उनको बता दिया जाएगा कि स्नेक कैसे, हैंड के थ्रू, कि स्नेक क्या फिजिकल मूवमेंट क्या है, तो बच्चे फौरन पहचान जाएंगे कि ये स्नेक है. Yeah. So the most important thing is what you are trying to say here is that आपके पास पिक्चर्स हैं, जिन Yes, ma'am. पिक्चर्स में सा साउंड बिगनिंग साउंड है, तो आप बच्चों को बोलोगे कि वो उसका नाम बोलें. What is the first picture? Snake. What is the second picture? सन. Sun. What is the third picture? Saw. Saw. What is the fourth picture? Squirrel. Squirrel. And Squirrel. what's the fifth picture? Snowflake. Snowflake. Right? Sandcastle. Socks. Slippers. And what is this? I also don't know what does it look like. But आप बच्चों से क्या पूछोगे? आप बच्चों से पूछोगे what is the beginning sound in all these pictures? बच्चों ने आपको बोल recognize करी vocabulary words, ये words कौन कौन से हैं, और आप उनको क्या बोलोगे? To identify the beginning sound. What is the first sound? Is that making sense? Yes, ma'am. So आपने उनको beginning sound identify करने को बोली. अब now let's come to the next picture.
यहां पर आप क्या करा सकते हो? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मैम, फर्स्ट पिक्चर में इधर ये साइड, लेफ्ट साइड। ड्रम है, गिटार है, और क्या है? Yeah. Very carefully look at this picture. It has the P pictures. Play. Play the music instruments. What do you do? All these musical instruments, none of them is starting from P. So what the vocabulary word is play piano, play guitar, play drum. My friend plays drums. My friend plays guitar. देन इज द पेग, पीनट। तो आप बच्चों को आइडेंटिफाई करवा रहे हो, उनको पी साउंड लेटर, आपने पी उनको पता है, अब आप उससे जो साउंड है उसको वोकैबुलरी वर्ड्स आइडेंटिफाई करा रहे हो। यहां पर फर्स्ट एक्टिविटी में आपने बिगनिंग साउंड आइडेंटिफाई कराई थी, यहां पे आप रिलेटेड वोकैबुलरी आइडेंटिफाई करा रहे हो कि ये पी है, इसमें से कौन कौन सी पिक्चर्स हैं जो कि साउंड से शुरू होती हैं। सो यू हैव प्ले, देन यू हैव पीनट, राइट? देन you have the pig. Table पेंसिल। starts with P? No, let's say Yes, ma'am. table. Does it starts with P? No, ma'am. No. No, ma'am. Okay, look at this girl. Girl. Does it starts with P? No. P. And डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप लेटर पी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हो या आप 3 साल के बच्चे के साथ फोनिक अवेयरनेस कर रहे हो? अगर आप 3 साल के बच्चे के साथ फोनीमिक अवेयरनेस कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव साउंड होना चाहिए, राइट? So, but if I say that this is not a girl, this girl is a plumber, plumber, then does it starts with P? Yes. Yes. Good, very Yes, good. it is. Very good. Now look at this queen. Does it has the sound P? No. No. Very good. Ma'am, this So is now you know princess. how to use this? Well, queen. Yes. Now let's look at Prince. the other ways that you can do the sound recognition. You can match the picture. अब यहाँ पर आप phonics करा रहे हो because आप vocabulary को letter से associate करा रहे हो, right? So this is not only phonemic awareness, this is teaching phonics, that the child can identify the picture. कौन सी picture है ये first? Dog. So Dog. what is the first sound in dog? D or B? D. 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 So the child will circle D, right? यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स है। एक बच्चा साउंड आइडेंटिफाई कर रहा है और एक बच्चा लेटर डिस्क्रिमिनेट भी कर रहा है कि डी कौन सा है, बी कौन सा है, राइट? आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कैन यू सी? Yes, ma'am. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं आपको बोल सकती हूँ, मैं एक साउंड बोलूं और आपको बोलूं अपने आसपास से इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स लेके आइए। जैसे मैंने आपको बोल दिया से और आपको बोला आप इस साउंड से रिलेटेड जो भी आपके सामने चीजें पड़ी हैं लेके आइए, राइट? या मैंने आपको बोल दिया ब ब ब, आप एक साउंड वॉक पे गए और आप अपने आसपास से जितनी भी ब साउंड, बुक उठा के लेके आए। All these activities are meant for creating phonics or phonemic awareness. Are you getting the examples, teachers? Yes, ma'am. Now, we all are coming to a very important aspect of our national curriculum framework. ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम करिकुलर गोल्स की बात कर रहे थे
कि एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमारे कुछ करिकुलर गोल्स बने हुए हैं, राइट? उन करिकुलर गोल्स को हमने फिर कॉम्पिटेंसीज में डिवाइड किया है, फिर कॉम्पिटेंसीज फर्दर लर्निंग आउटकम्स में डिवाइडेड है। जब हमने ट्रेनिंग शुरू करी थी, हमने बोला था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन पर्पस क्या है, स्कूल एजुकेशन क्या है, और उसके बाद हम बच्चों में क्या बिल्ड करना चाहते हैं, वैल्यूज, नॉलेज, डिस्पोजिशंस एंड कैपेसिटीज, है ना? तो उसके लिए इस वैल्यू, नॉलेज, कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए हमने कुछ करिकुलम बनाया है, जिसमें हमने बड़े बड़े करिकुलम गोल्स रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए और हर एक लेवल के लिए। अभी हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं, प्रेपरेटरी स्टेज या फाउंडेशनल स्टेज? फाउंडेशनल 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 स्टेज का कितने साल की होती है? 3 to 6 years. हाउ 3 to मेनी इयर्स? 3 to 5. 5 years। 3 एंड to 5 years का 5. मतलब है वो कहाँ से शुरू हुई? 3 to 8 years। 2 और years उसके to 3 3 to 8 years till grade 2 is your foundational stage। Okay, 3 year, 4 year, 5 year, 6 year, 7 years। तो आपका 3 साल से लेकर बच्चा जब 8 साल का होता है, वो जब तक वो ग्रेड 2 में होता है तब तक वो फाउंडेशनल स्टेज कराती है। और उसके बाद कौन सी स्टेज शुरू हो जाती है? ग्रेड 3, 4, 5 कौन सी स्टेज कहलाती है? प्रेपरेटरी स्टेज। और 6, 7, 8 कौन सी स्टेज कराती है? मिडिल स्कूल, राइट? और फिर हाई स्कूल को हम क्या बोलते हैं? 9th, 10th, 11th, 12th। तो हमारी एजुकेशन कितने में, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या निकाला? 5, 5. 3, फिर से 3 एंड देन 4 years। ओके, 5. 5 + 3 + 3 + 4, राइट? ये आपकी 15 years का जो पूरा एनईपी ने निकाला है, उसमें से जो 5 years हैं फ्रॉम नर्सरी टिल ग्रेड 2 आर कॉल्ड फाउंडेशनल ईयर्स। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम समझने जा रहे हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज फ्रॉम नर्सरी टिल ग्रेड 2। ओके, वरना हम क्या समझने जा रहे हैं आज? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर विच स्टेज? प्रेपरेटरी और फाउंडेशनल? Preparatory. फाउंडेशनल फाउंडेशनल। आपने अभी तक जो भी ट्रेनिंग करी है फाउंडेशन मैम फाउंडेशनल स्टेज की करी है टीचर्स। प्रेपरेटरी स्टेजेस ग्रेड 3, 4 एंड 5, जिसे हम प्राइमरी ईयर्स बोलते हैं, राइट? अब आपके ग्रेड 1 एंड 2 भी आपकी हाँ फाउंडेशनल स्टेज में आएगा। गॉट इट? यस मैम सो लेट्स नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या बता रहा है, गोल्स क्या है, करिकुलर गोल्स क्या होते हैं। करिकुलर गोल्स आर द बिग विजन ऑफ लर्निंग, कि ये 5 साल में 3 to 4, 4 to 5, 5, अब सब अपनी नोटबुक पे लिखेंगे फाउंडेशनल स्टेज, और इसकी कैटेगरीज बनाएंगे और मुझे बताएंगे कितनी कैटेगरीज बनी। लिखिए 3 to 4, 1 लिखिए, या ए लिखिए और फिर लिखिए 3 to 4, फिर बी लिखिए, फिर लिखिए 4 to 5, फिर सी लिखिए, फिर लिखिए 5 to 6, फिर डी लिखिए, फिर लिखिए 6 to 7, ई लिखिए 7 to 8। कितनी कैटेगरीज बन गई? मैम 5 5 5 9. 5. तो 5 अभी जो हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं वो इन 5 स्टेजेस का डिस्कस कर रहे हैं। सबको पता चल गई? ये यस 5 साल कौन कौन से हैं? इसमें से ग्रेड 1 कौन से एज ग्रुप का बच्चा जाना चाहिए? ग्रेड 6 वन to 7
6 to Very 7. good. 6 to D, 7. और D. grade 2? 7 to 8. Very 7. good. तो जो हम गोल की बात कर रहे हैं, द बिग विजन ऑफ लर्निंग, कि 5 साल के अंदर, 3 साल से लेकर 8 साल, नर्सरी से लेकर ग्रेड 2 तक बच्चों को 5 साल के अंदर ये सब कुछ करने आना चाहिए। ठीक है? उसे कहते हैं करिकुलम गोल। उसे क्या कहते हैं? करिकुलर Curriculum. गोल, जो Curriculum. आपके 5 साल का प्लान है। कितने साल का प्लान है? 5 5 years. साल 5 5 साल years. का। और वो 5 साल में कौन कौन सी स्टेजेस हैं? स्टेज A B C D E। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। एक ही गोल चलेगा, पर वो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 में डेवलप होता जाएगा। स्पाइरल। आप लोगों को स्पाइरल पता है क्या होता है? ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर 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 चला जाता है, स्पाइरल बोलते हैं ना। तो जो Yes, हमारा ma'am. करिकुलम गोल है वो इतना बड़ा है, 5 साल का है, पर वो शुरू होगा 3 to 4 से, 4 to 5, सेम चीज। ठीक है? हम बोलना शुरू करते हैं तो कब से शुरू करते हैं? 6 महीने, 7 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है ना। Yes, ma'am. कैसे बोलता है? Yes, ma'am. रा बा बा बा। इसे क्या बोलते हैं? बैबलिंग। Babbling. फिर उसके बाद क्या बोलता है? म म प प। राइट? पर ये जो उसकी लैंग्वेज है, ये डेवलपमेंट चलती जाती है, ये कभी रुकती है? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. आज तक चल रही होगी। आप नए वर्ड सीख रहे हैं, नई लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। राइट? तो करिकुलम गोल जो होता है वो एक बड़ा गोल होता है, ओवरऑल गोल होता है, कि एक एरिया में बच्चा 5 साल में क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीख लेगा। ठीक है? क्या एक्सपेक्टेड है उससे। shows that why are we teaching something। जो आपका करिकुलर गोल है वो आपको बताता है कि ये रोज रोज आप चेक नहीं कर सकते। ये आपको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और फिर 12 महीने पे जाकर आपको पता चलेगा कि ये गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। और अब 3 से 4 में मेरा इतना गोल था, ये अचीव हो गया। अब 4 से 5 सेम लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, बट इससे ऊपर होगा। फिर 5 से 6 होगा, पर इससे ऊपर होगा। है ना? उसी को कहते हैं हम द करिकुलर गोल। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? डेवलपमेंटल डोमेन्स। अब जल्दी से मुझे बताइए, हमने कौन कौन से डेवलपमेंटल डोमेन्स की बात करी थी? रुचि कोटा, सबसे पहला कौन सा डेवलपमेंटल डोमेन था? Stick develop. Cognitive. वेरी गुड रुचि, कॉग्निटिव। और उसके बाद Sensory. Social emotional. फिजिकल। वेरी गुड। सोशल इमोशनल। देन language, Language. Intellectual development. वेरी गुड। एंड देन उसके बाद पांचवा? aesthetic, वेरी गुड जीनत, ऑरल एंड एस्थेटिक। वंडरफुल। तो जो आपके करिकुलम गोल्स हैं वो ये आपके 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स के ऊपर बेस्ड है फॉर 5 years। yes ma'am. ओके? Yes, ma'am. एग्जाम्पल, चिल्ड्रन एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। ये कौन से डेवलपमेंटल डोमेन का गोल है? चिल्ड्रन एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। Social emotional. Ma'am, और social थोड़ा emotional. सोचो रुचि, Sorry, ma'am. और थोड़ा सोचो। क्लियरली एक्सप्रेस देमसेल्व्स। Sensory motor stage, ma'am. It's not stage, No, it no. is a physical develop, it's a developmental domains. Yes. Physical, language, Ma'am, Ma'am, language. cognitive, cognitive. No ma'am. लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे को अपने Lang- आप को एक्सप्रेस, अगर मैं ये बोलती रेगुलेट हिज फीलिंग्स, Express. Yes, ma'am. अगर मैं बोलती रेगुलेट हिज Then फीलिंग्स, तो वो होता सोशल इमोशनल। राइट?
अच्छा, अब हम दूसरे आ जाते हैं। Yes, ma'am. करिकुलम गोल के बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने हमें क्या बोला कि Yes, आपके ma'am. पास कुछ कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल में नीचे बना हुआ एम, गोल, कॉम्पिटेंसीज, देख पा रहे हैं आप? कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं? प्लीज रीड माय स्क्रीन, रीड माय स्लाइड. What is a competency? What the child can do in Can real do real situation. real situation. आगे भी पढ़िए. Skill plus Skill, understanding plus Skill attitude plus understanding, understanding plus attitude attitude plus apply applied in in real real world world situation. situation. वेरी गुड. आगे पढ़िए. Development of ability, not just Development knowledge, of can be through Through behavior, behavior, choice, and choice, and interaction while interaction engaging knowledge, with while the environment. engaging with the through environment. behavior, choice, and Action More force action focus than on the goal. goals. be more action focused than goal. Child सो can सबसे share बड़ी बात, ideas. सबसे बड़ी बात हमने बोली कि हमारा एक गोल है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए, ये कर पाना चाहिए. ये पता हो के वो उसको कर कैसे पा रहा है, वो स्किल, वो अंडरस्टैंडिंग, वो एटीट्यूड जो कि वो अपनी नॉलेज को रियल वर्ल्ड में करके हमें डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि वो उसको कैसे अप्लाई कर सका है, उसे बोलते हैं कॉम्पिटेंसी. क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंसी. Competency. स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. याद है हमने इसके बारे में भी बात करी थी कि हमें कंटेंट नहीं पढ़ाना, हमें स्किल्स पे फोकस करना Content. है, क्योंकि स्किल्स को Yes, यूज ma'am. करके कंटेंट को यूज किया जा सकता है. पर अगर हम सिर्फ स्किल कंटेंट को फोकस करेंगे तो स्किल्स नहीं डेवलप हो पाएंगी. राइट? सो और सबसे Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट बात है कि क्या वो उनको रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई कर सकता है. जैसे आपने उस दिन बोला मून, मैंने आपने बोला, और हमको संजना ने एक एग्जांपल दिया कि व्हाट इज द शेप ऑफ द मून. तो मैंने उसे बोला व्हाट इज अ रियल वर्ड, वेयर डू यू सी द मून, डज द मून शाइन. तो वो रियल वर्ड है, दैट इज द स्किल ऑफ द चाइल्ड्स ऑब्जर्वेशन. बच्चा इसमें क्या यूज कर रहा है? अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स. जब आपने बोला लुक एट दिस पिक्चर, Observation. तो बच्चा क्या कर रहा है? अपनी स्किल यूज कर रहा है ऑब्जर्वेशन की, और उस स्किल को यूज करके ही इज ट्राइंग टू आंसर, right, the real world context. That's fine. So that is what is called building the competency. बच्चा बार बार जब सेम चीज को यूज करता है, स्किल्स को यूज करता है, then he becomes competent. आपने पहले रोटी बनाई, रोटी टेढ़ी बन गई, फिर आप बनाते गए बनाते गए बनाते गए, कभी कच्ची बनती थी कभी अच्छी बनती थी. फिर जब आप सालों साल इसको बनाते गए, अब आपकी रोटी ऐसे बनती है. तो आपने क्या किया? आपको रोलिंग की स्किल आई, आपको उसको सेकने की स्किल आई, और फिर एक बार आपकी रोटी पूरे अच्छे से अच्छी बन गई. दैट इज योर कॉम्पिटेंसी, योर कुकिंग स्किल्स, योर culinary स्किल्स. ओके, मेकिंग सेंस? अब इसका एग्जाम्पल क्या है? चाइल्ड, जैसे हमने ऊपर एक करिकुलम गोल था, चिल्ड्रन एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली. तो हमने बोला कि ये लैंग्वेज Yes, ma'am. डेवलपमेंट का है, गोल है. तो इसकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी? द चाइल्ड कैन शेयर आइडियाज, लिसन टू पियर्स, आस्क क्वेश्चंस, कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. राइट? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसीज. सबको समझ में आ रहा है? अगर मेरा गोल है टू ट्रेन द foster kids teachers on foundational stage as per NEP, that is my curricular goal. But what are the skills and competencies I'm building in you? You are able to identify the developmental domains.
You are able to teach literacy. You are able to teach numeracy. राइट? ये आप सबकी कॉम्पिटेंसीज हैं, जो स्किल्स मैंने आपको किया। मुझे कैसे पता चलेगा वो आपको पता है कि नहीं पता? जब मैं आपसे पूछूंगी विच एरिया ऑफ Countries. डेवलपमेंट, हाउ डू यू टीच फोनिक्स, how do you teach phonemic awareness, and you can give me examples, you can do a demo. That is how I will know that you are able to apply your training in your school. That is called competencies. सबको क्लियर हुआ? अभी समझ में आया? Yes, थोड़ा ma'am. चमका? Yes, ma'am. Yes. Yes. Anita is laughing. Now let's come to the third part. अभी तो हमने बात करी कि ये गोल है, ये स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं। अब उनके आउटकम्स क्या हैं? यस मैम। बच्चा ऐसा क्या करके दिखाएगा अब कि आप मुझे इस पता चलेगा? शुभू प्लीज, देयर इज समबडी, देयर इज डिस्टर्बेंस। बच्चा ऐसा क्या करेगा कि आपको पता चले कि उसको पता चल गया है, कि जो आपने पढ़ाया है उसे पता है? तो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि हम कौन से स्टेज का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। आप सबने झटाक से बोला फाउंडेशनल स्टेज। तो हम Yes. 3 महीने से फाउंडेशनल स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। सो नाउ व्हेन आई टोल्ड यू, मैंने पूछा कौन कौन सी एज ग्रुप्स आएंगे, आपने बोला 3 ईयर, 4 ईयर, 5। मैंने पूछा कौन से ग्रेड्स आएंगे, आपने बोला grade 1 एंड grade 2। सो आई आस्क्ड यू सम क्वेश्चंस एंड यू डेमोन्स्ट्रेटेड कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आ गया है। दैट इज व्हाट, व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेट योर लर्निंग, right? That is called a learning outcome. Okay? Understand it this way. Right now, I taught you about diphthong, I taught you about phonics. And after the phonics session was over today, I asked you if you were to teach this phonics session, मैंने आपको 2 एक्टिविटीज दी, मैंने बोला करके दिखाओ, कैसे पढ़ाओगे? तो आप सबने बोला, जीनत ने बोला कि मैम हम उनको साउंड रिकॉग्नाइज करवाएंगे, राइट? लक्ष्मी ने बोला कि वी कैन आस्क देम व्हाट इज अ बिगनिंग साउंड, राइट? सो दैट वाज एन इंडिकेटर दैट जो कुछ भी मैंने आपको फोनिक सेशन में पढ़ाया है, यू आर एबल टू यूज इट इन द क्लास। यू शोड टू मी, हाउ विल यू यूज इट इन द क्लास? So are you understanding 3 things? Yes. Goal, competency, outcome. Ability. LOs, LOs बोलते हैं हम इनको, learning outcomes. और यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपको समझाने का? फर्स्ट गोल क्या है? चिल्ड्रन एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। कौन से डेवलपमेंटल डोमेन? लैंग्वेज डेवलपमेंट का। और कॉम्पिटेंसीज क्या है? चाइल्ड कैन शेयर आइडियाज, लिसन टू पियर्स, आस्क क्वेश्चंस। और आउटकम क्या है? कि बच्चा 3-4 सेंटेंसेस शो एंड टेल में बता पा रहा है। अब आप कैसे पढ़ोगे कि अगर बच्चा क्लास में आंसर देता है तो मुझे पता चल जाएगा कि शुभू ने मुझे आंसर दिया, कि शुभू को कितनी अंडरस्टैंडिंग है। पर जब मैंने शुभू को बोला दैट शुभू नाउ डू दिस फोनिक मैथ फॉर मी, इस फोनिक मैथ को मुझे करके बताओ कि आप क्लास में कैसे कराओगे, एंड शी डज इट फॉर मी, दैट इज द इंडिकेटर whether she has understood or not. So that is a learning outcome of the phonics session. Learning outcome से हमको, हम एक्टिविटीज और ऐसी एक्सपीरियंसेस प्लान करते हैं ताकि हमें पता चले कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कौन से लेवल पर है। समझ में आया आपको? एनी क्वेश्चंस? Woman. श्योर? ओके,
तो हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे करिकुलर गोल्स क्या होते हैं। ये जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, दिस इज बीन टेकन फ्रॉम द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आपके पास जितने भी 5 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आप लोगों ने मुझे बोले, आपको दिख रहे हैं आपके लेफ्ट में डेवलपमेंटल डोमेन्स। Yes, ma'am. वंदना, व्हाट इज द फर्स्ट डेवलपमेंटल डोमेन? Yes, ma'am. Development. फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में कौन से 2 फर्दर एरियाज होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के? शुभू, फिजिकल डेवलपमेंट के कौन 2 मेजर एरियाज होते हैं? ग्रॉस मोटर, The fine motor. Fine motor, वेरी fine motor गुड, skill. Fine वेरी motor. गुड। Fine motor. अगेन मैंने आपसे क्या किया? मैंने फिजिकल डोमेन्स, आप लोगों को मेरा करिकुलम गोल था कि आर माय टीचर्स एबल टू, शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द 5 एरियाज डेवलपमेंटल डोमेन्स इन अर्ली ईयर्स, राइट? और मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर द 5 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, आपने मुझे आंसर बता दिए। अब मैंने आपसे पूछा कि ये वाला जो गोल है ये कौन से एरिया ऑफ डेवलपमेंट है? दैट इज अ लर्निंग आउटकम, राइट? कि आप उस टास्क को जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था उसको आप बता पाओ कि वो कौन से एरिया ऑफ डेवलपमेंट में है। समझ में आया एग्जाम्पल से? अब हम पढ़ रहे Yes, हैं ma'am. कि जो पूरा एनसीएफ है वो इसके अराउंड है टीचर्स। फिजिकल डेवलपमेंट के 3 करिकुलर गोल्स हैं। चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स टू कीप देम हेल्दी एंड सेफ। चिल्ड्रन डेवलप शार्पनेस इन सेंसोरियल परसेप्शंस। हमने बहुत ज्यादा बात करी थी, एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट विथ सेंसोरियल परसेप्शंस। बात करी थी ना हमने, ज्यादा से ज्यादा सेंसरी मटेरियल देना है, सैंड, वाटर, नेचुरल मटेरियल, नेचर वॉक्स करानी है, डंडियां, पत्तियां, मिट्टी, कंकड़ी, पत्थर, पेबल्स, ये सब सेंसोरियल परसेप्शंस हैं। और बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगी? जब वो उनको यूज करेंगे। एंड चिल्ड्रन डेवलप अ फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी। बड़ा एक जनरल करिकुलम गोल है ना? पर ये तो Yes. बहुत ही जनरल है, ये तो आप बोल दोगे हाँ हाँ हो जाएगा, राइट? इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है कॉम्पिटेंसीज में। ये करिकुलर गोल्स जो हैं ये फर्दर जाके कॉम्पिटेंसीज में डिवाइड होंगे। पर कॉम्पिटेंसीज में जाने से पहले मैं चाहती हूं कि आप लोग केयरफुली इन सबको पढ़ो। सोशल, इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट, राइट? चिल्ड्रन डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी मुझे रुचि ने आंसर दिया था, मैम ये सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है। तो मैंने रुचि को बोला, रुचि अगर ये होता मैनेज देयर इमोशंस तो ये सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता, है ना? तो आपको दिख रहा है सोशल Yes, इमोशनल ma'am. डेवलपमेंट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू सोशल नॉर्म्स। इसका क्या मतलब होता है? एक्टिविटीज लाइक मैम इमोशंस, जैसे कि पपेट शो और शेयरिंग, एनकरेजिंग। So those all which you said right now are your competencies, जीनत। वो जो सारे आपने एग्जाम्पल दिए हैं, पपेट शो करना, बच्चों के साथ क्वालिटी सर्कल टाइम करना, रूटीन्स एंड रिजीम्स करना, बच्चे अपनी फीलिंग्स शेयर करें, इमोशंस को नाम दे सकें, स्कैड, ये सब आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं। और जब आप बच्चे को बोलो कि शो एंड टेल या स्टोरी को दोबारा पढ़ के बताए, वो आपका लर्निंग आउटकम है, राइट? जो ये Yes, ma'am. इसका मतलब वो ये है कि बच्चे जब सिचुएशन ऐसी हो उसमें क्या अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल शेयर करते हैं, टर्न्स लेते हैं, टॉयज शेयर करते हैं क्लास में बच्चों के साथ, ये तो नहीं किसी को मार के खींच लेते हैं। या उनको एक्सप्लेन करना आता है, जब आप उनको बोलो दिस इज राइटिंग टाइम, और वो आपकी बात सुनकर
अपने पोजीशन ले लेते हैं, टेबल पे आ जाते हैं टॉयज को छोड़कर, राइट? क्योंकि हमने कुछ रूटीन्स बनाए हुए हैं, क्लासरूम नॉर्म्स बनाए हुए हैं ना। तो बच्चा क्या उन नॉर्म्स को Yes, फॉलो ma'am. करता है, रूल्स को फॉलो करता है? दैट इज बिकॉज हम बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, जहां पे भी वो जाएगा ही शुड बी able to follow, Yes. Yes, right? ma'am. Yes, ma'am. सो जो मैं आपसे पूछ रही थी वो ये पूछ रही थी कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चे को अगर भूख लगे तो उसे बताना आना चाहिए। उसे अगर टॉयलेट जाना है तो वो आपको कम्युनिकेट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। अगर उसे मम्मी की याद आ रही है, उसको रोना आ रहा है, तो ये बोल सकता है आई एम सैड, राइट? वो अपने सारे फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, राइट? Children develop a positive attitudes towards productive work, service, or seva. What does this mean? This means सोशल इमोशनल। हमने बात करी थी कि हम क्लास में कुकिंग एक्टिविटीज करते हैं, राइट? उनको बच्चों को सेंसोरियल परसेप्शंस और सेंसोरियल लर्निंग देने के लिए, और फिर हम जाके बोलते हैं कि चलो हम दीदी को भी देंगे, हम भैया को भी देंगे, हम आज इन बच्चों के साथ शेयर करेंगे, राइट? दैट इज योर अगेन एथिकल डेवलपमेंट, कि बच्चों को सिर्फ अपना नहीं दूसरों से शेयर, कम्युनिटी वर्क करना आना चाहिए। आपको याद है हमने इसके बारे में बात करी थी जब हम सोशल इमोशनल लर्निंग की बात कर रहे थे, दैट द चिल्ड्रन आर एबल टू शेयर, राइट? नॉट ओनली विद देयर ओन पीपल बट विद द कम्युनिटी। आज हम अपनी दीदी के लिए नींबू पानी बनाएंगे, आज हमने नींबू पानी बनाया क्लास में, हम दीदी और भैया को भी सर्व करके आएंगे, राइट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर एथिकल डेवलपमेंट, सेवा। चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द नेचुरल एनवायरमेंट, फूल नहीं तोड़ने, लिटरिंग नहीं करनी, आ, चीजों को नहीं तोड़ना, स्कूल की प्रॉपर्टी को नहीं करना, हमने एनिमल्स की तरफ वो रहना है, से नो टू द से नो टू व्हाट, प्लास्टिक, Right. save environment, right? Save elephant, say no to ivory, Say right? no to All these strangers are also, the ma'am. awareness आपको बच्चों को करनी है for the natural environment, towards the flora and fauna. Flora means your plants, fauna is your animals, okay? Cognitive development, रुचि ने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। चिल्ड्रन मेक सेंस ऑफ वर्ड अराउंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। इसमें टीचर्स प्लीज नोट कीजिए, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रही है। Cognitive development is the ability of your mind to process knowledge, information, right? It is a lot of your left brain functioning. It has to do a lot with your left brain functioning. Left brain function. यस। और हमने क्या, इसको आप दो चीजों में अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो आप डिवाइड करके देखिए कि आप बच्चों को अपने थीम्स पढ़ाते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, फूड, एनवायरनमेंट, है ना, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ बताते हो, तो जो ऊपर वाला गोल है, चिल्ड्रन मेक सेंस ऑफ द वर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, ये बेसिकली आपका एनवायरमेंटल साइंस की तरफ है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, राइट? जिसे कई स्कूल्स में नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड बोला जाता है, या ईवीएम बोला जाता है, EVM. राइट, या Yes, ma'am. ईवीएस बोला जाता है। और जो दूसरा है दैट इज मोर टुवर्ड्स मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, टू रिकॉग्नाइज द वर्ड थ्रू क्वांटिटीज, शेप्स एंड मेजर्स। ठीक है? जो हम मंडे से शुरू करेंगे अंजु मैम के साथ, हम बात करेंगे न्यूमरेसी की, ये वाला कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सेकेंड एस्पेक्ट। हाउ टू टीच, अभी हमने बात करी थी हाउ टू टीच लिटरेसी, अभी भी हम बात कर रहे हैं लिटरेसी के बारे में। अब नेक्स्ट वीक से हम हाउ टू टीच
न्यूमरेसी टू द चिल्ड्रन। और न्यूमरेसी किसके अंडर आएगी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। कौन से डोमेन में आएगी? कौन से डोमेन में आएगी? Cognitive development. कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Cognitive ओके, development. यस। अब हम आ जाते हैं, Cognitive क्योंकि development. हम फाउंडेशनल लिटरेसी की बात कर रहे थे, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, राइट? Yes, ma'am. Children develop effective communication skills for day-to-day interactions in two languages. कौन सी two languages हैं? L1. Mother English L1 and L1 is English. L2 is mother home language, mother tongue. L1 is Mother tongue English or language. L2 is English? L2 is English. L1 is local language. Yes. And language 2 is your other language, right? Yes, ma'am. And children develop fluency in reading and writing in language 1 or begin to read and write in language 2. दोनों में फर्क समझिए टीचर्स। हम इंडिया में हैं, हम भारत में हैं, हमारी L1 हिंदी है और हमारी R1s भी हो सकती हैं, रीजनल लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, राइट? आपके Yes. साउथ में ही लक्ष्मी कितनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस हो सकती हैं, है ना? हाँ, और नॉर्थ Five. इंडिया में अलग हो सकती हैं। 5 states, 5 languages. 5 states, 5 languages, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, राइट? Yes. मलयालम, Malayalam. या। सो आपको सबसे पहले फ्लुएंसी किसमें लानी है? L1 में। तभी हम बार बार बोल रहे हैं बाइलिंगुअल जाइए, बाइलिंगुअल जाइए। जो सब कुछ मैंने आपको सैट पिन पढ़ना सिखाया वो इंग्लिश में सिखाया, पर आपको याद होगा मैंने आपको वर्ब भी करवाना सिखाया था, वर्षा, वकील, वन, कि आप पहले व कराइए, Yes, फिर न ma'am. कराइए, फिर वन कराइए, फिर वक करवाइए, ठीक है? फिर आप क के शब्द करवाइए और फिर बच्चों को उनसे वर्ड्स बनाइए, नमक का नमक। एक 3 साल का बच्चा भी नमक लिख सकता है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा बहुत सरल है, जैसे बोली जाती है लिखी जाती है, राइट? अजगर, नमक, राइट? नभ, रमन, घर, चल। ये हम शुरू शुरू में ही ये ब्लेंडिंग सिखा सकते हैं। बस आपको वर्ड्स वो पकड़ने हैं, जैसे हमने सैट पिन पकड़ा, आपको अपना हिंदी का भी एक चार्ट ऐसा बनाना है जिसमें कि आप हिंदी के वर्ड्स भी वो लिखें जो कि ब्लेंड हो सकें और ज्यादा से ज्यादा 3 सीवीसी वर्ड्स बन सकें, राइट? Yes, ma'am. तो हमने फ्लुएंसी बनानी है L1 में और बिगिन टू रीड एंड राइट, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश करना सीख जाएं। अब डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से एरिया में हैं, अगर आप थोड़े से रूरल एरिया में हैं जहां पर आपका बच्चा जो है बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम हिंदी यूजर है, जिसने कभी इंग्लिश नहीं सुनी, तो ऑफ कोर्स आपको L2 बिल्ड करने में टाइम लगेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, बट ma'am. अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं इंडिया की, तो आपके पेरेंट्स अगर L2 उनको आती है तो ऑफ कोर्स बच्चे सुन रहे हैं, उनको एक्सपोजर है। सबको ये क्लैरिटी हो गई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब हम तीसरे 5वें डेवलपमेंटल डोमेन पे जाते हैं, एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। उसमें क्या बोला? चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटीज एंड सेंसिबिलिटीज इन विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस थ्रू आर्ट इन मीनिंगफुल एंड जॉयफुल वेज। मेकिंग सेंस टीचर्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक हमारा करिकुलर गोल है जो कि सबसे लास्ट है, पॉजिटिव हैबिट्स टुवर्ड्स लर्निंग टू एंगेज इन फॉर्मल लर्निंग। अपने लर्निंग की तरफ पॉजिटिव, मोटिवेटेड रखना बच्चों को, राइट? आपको मैं कैसे मोटिवेटेड रखती हूँ? आपको एजेंसी देकर, आपको वॉइस एंड चॉइस देकर, राइट? उसी तरह से तभी आपको रोज आने का मन करता है। पिछले 3 महीनों से अगर आपको वॉइस एंड चॉइस लर्निंग नहीं मिलेगी,
you will not feel motivated to come. And if you don't get value, right, then you will never come. Similarly, children, if they don't find value, they don't find voice and choice, they don't find agency, they won't develop positive learning habits. Okay? Now let's come to one example. ये आपका, क्योंकि हम फोनिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हम फाउंडेशनल लिटरेसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम देखेंगे कि कौन कौन से लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट के करिकुलम गोल्स हैं. अभी तक हमने क्या किया था? सारे डेवलपमेंटल डोमेन्स के लर्निंग गोल्स पढ़े, करिकुलर गोल्स पढ़े. अब हम पढ़ रहे हैं सिर्फ लैंग्वेज और लिटरेसी डेवलपमेंट के. किसके पढ़ रहे हैं अनीता? Development. तो हम सबसे पहले करिकुलम गोल पढ़ेंगे. आपका जो करिकुलम गोल है वो कहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट में या राइट में? मैम लेफ्ट. मैम हमारे लेफ्ट में. आपके लेफ्ट में. Yes, लक्ष्मी ma'am. पढ़ के सुनाओ करिकुलम गोल. One second. Ma'am, my screen is not getting clearly, ma'am, here. ओके अनीता, आर यू एबल टू रीड? जहां Yes, पे लिखा है ma'am. CG9. CG9 पढ़ना है. हाँ जी. Listen to and नो appreciate. नो 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 Yes, नो. ma'am. Short Okay, children story. develop effective communication skill for day-to-day interaction in 2 languages. आप इसमें डिफरेंस समझिए. करिकुलम गोल मतलब CG, बड़ा Okay, बड़ा ma'am. गोल. और Okay, जो okay. उस करिकुलम गोल को जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, उनको बोलते हैं कॉम्पिटेंसीज. जो आपको C9.1, C9.2, C9.3 दिख रही हैं, ये सारी कॉम्पिटेंसीज हैं. क्या है? Competence. क्या है? Competency. कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं? टीचर्स के द्वारा की गई कोशिश. Am I स्किल्स. correct? Skills. Skills. Skills and abilities that So help share the the child idea. to use the understand. learning in the real world. Skills Okay, and ma'am. abilities. Okay, रुचि. Yes, ma'am. और जो टीचर के द्वारा एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस प्लान की जाती हैं, वो आउटकम्स के लिए प्लान की जाती हैं, ताकि देख सकें कि बच्चा वो करिकुलम गोल अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा. ठीक है, हम उस पे भी आएंगे अभी. तो इसको ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि अगर चिल्ड्रन डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इसकी कॉम्पिटेंसीज है लिसन्स टू एंड अप्रिशिएट सिंपल सॉन्ग्स एंड राइम्स. एक 3 साल का बच्चा, आप उसको राइम सुनाओ, वो राइम सुनता है, वो राइम को समझता है, वो आप राइम के एक्शन को फॉलो करता है. जैसे हम सब ने राइम्स करी थी. मैंने बोला अनीता नाउ स्टोन सूप, स्टर स्टर, मिक्स मिक्स. तो अनीता ने फॉलो किया. अनीता ने बोला मैं कैरेट डालूंगी. अनीता ने आके कैरेट डाला. दैट मीन द चाइल्ड इज एबल टू लिसन. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. चाइल्ड इज एबल टू Yes, लिसन ma'am. एंड अप्रिशिएट सिंपल सॉन्ग्स एंड राइम्स. Yes, ma'am. जो 3 साल का बच्चा कर सकता है. बट जो 4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, वो सिंपल सॉन्ग क्रिएट भी कर सकता है. शायद 3 साल का बच्चा ना क्रिएट कर पाए, पर आप करवाते रहिए. राइट? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी एज के अहेड होते हैं. राइट? Yes. Yes. Yes, ma'am. तो जो C कॉम्पिटेंसी 9.2 है, वो 4 से 6 साल या 4 से 8 साल बच्चों के लिए यूज हो सकती है. बच्चे छोटे छोटे अपने गाने बनाना शुरू कर देते हैं. आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, आलू कचालू ले लो भालू. राइट? वो ऐसे ऐसे छोटी छोटी राइम्स बनाना शुरू कर देते हैं. मैंने खाई मूली, मेरा मुंह हो गया फूली. मतलब थोड़ी सी नॉनसेंसिकल है, पर वो कोशिश करते हैं बनाने के लिए. पैट पैट गिव मी अ रैट, पैट पैट गिव मी अ बैट. इस तरह की छोटे छोटे राइम्स और सॉन्ग्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं बच्चे. तो ये कॉम्पिटेंसी है. पर इस कॉम्पिटेंसी से हम क्या कर रहे हैं डेवलप? द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एक्सप्रेस.
यूज वोकैबुलरी। आपको समझ में आ रहा है टीचर्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर इस पे जाएंगे, करिकुलम फ्रेमवर्क, ये सब कुछ आपके लिए फ्रेमवर्क बनाया हुआ है एनसीएफ ने, हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, सी 9.3 पढ़िए। कन्वर्सेस फ्लुएंटली एंड कैन होल्ड अ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन। तो ये मून कहाँ पे होता है? शुभू ने कल मुझसे पूछा, मैंने बोला आसमान में होता है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि कोई सो रहा है, राइट? सो द चाइल्ड इज एबल टू टॉक। क्या मैं मून को पकड़ सकता हूं? नहीं नहीं, बहुत दूर होता है। तो बच्चा मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस कर सकता है, और हो सकता है कोई बच्चे 3 साल में नहीं कर पाए, कुछ बच्चे सेकेंड टर्म में कर पाए, है ना? Yes, ma'am. तो आप ऑब्जर्व करोगे उनको कि वो कर पा रहे हैं, पर ये करोगे कैसे? तो आप एक्टिविटीज डिजाइन करोगे जो कि बेस्ड ऑन दीज कॉम्पिटेंसीज है। शो एंड टेल। अपनी पिक्चर लेके आओ और मुझे बताओ अपने इस फैमिली फोटोग्राफ के बारे में। एक जब आप घूमने गए थे तो आपने जो खिलौना खरीदा उसके बारे में बताओ। शो एंड टेल। क्वालिटी सर्कल टाइम जब आप कर रहे हो तो बच्चों को बोलो कि देखो ये कीशा है, इसकी क्लास में किसी से लड़ाई हो गई, आपको क्या लगता है कीशा को कैसा फील हो रहा है? तो रुचि ने बनाया, नीता ने बताया, वंदना ने बताया, है ना? सो ऑल दिस इज योर लर्निंग आउटकम्स थ्रू द एक्टिविटीज, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे के अंदर वो कॉम्पिटेंसी आई है कि नहीं आई है। सबको क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल? Yes, ma'am. आप लोगों के लिए एज टीचर्स कॉम्पिटेंसीज को समझना बहुत जरूरी है। कॉम्प्रिहेंस नरेटेड और रीड आउट स्टोरीज, हमने बात करी थी कि बच्चे को जब आपने रीड अलाउड सेशन में स्टोरी सुनाई तो वो समझ सकता है, राइट? शॉर्ट स्टोरीज को दोबारा सुना सकता है। हमने बुक रिव्यू एक्टिविटी करी थी। अपना फेवरेट Yes. स्टोरी बनाओ, स्टार दो, टाइटल पेज बनाओ, अपना फेवरेट कैरेक्टर बनाओ स्टोरी में से। करी थी हमने बुक रिव्यू एक्टिविटी। Yes, ma'am. Yes, अगेन ma'am. बुक रिव्यू एक्टिविटी इज योर जॉब टू सी कि क्या बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर सकता है स्टोरी को, कि ऑथर किसके बारे में बता रहा है, राइट? जेम्स Yes, की ma'am. स्टोरी है, एलिफेंट की स्टोरी है, राइट? एलिफेंट जेम्स के पापा मम्मी गुम गए हैं। तो लर्निंग आउटकम क्या है? दैट द चाइल्ड इज एबल टू टेल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्टोरी थ्रू बुक रिव्यूज। तो रुचि को कैसे पता चलेगा? लक्ष्मी को जब वो बुक रिव्यू देगी और बच्चा बता पा रहा है, कर पा रहा है, तो लक्ष्मी को पता चल जाएगा कि हाँ, या वो स्टोरी को सीक्वेंस में डाल पा रहा है कि पहले जेम्स यहाँ गया था, फिर उसने ऐसे बोला, फिर ऐसे किया, तो पता चल जाएगा लक्ष्मी को कि द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, स्टोरी में पहले क्या हुआ, दूसरा। सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ हम आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हम स्पाइडर डायग्राम्स की बात कर रहे थे। च, श, स से पिक्चर्स बनाओ। नोज एंड यूजेस इनफ वर्ड्स to carry out day-to-day instructions effectively and can guess meaning of new words by using existing vocabulary, right? Meaning of new words using existing vocabulary, है ना? तो मैंने आपको बोला बक, बक से क से सोच कर न्यू वर्ड्स बनाओ, तो आपको कुछ वर्ड्स पता थे और आपने सोच सोच के नए नए वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए। सो अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी पार्ट पे। सारी चीजें हो गई हमारी, कॉम्प्रिहेंशन, मीनिंग, कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी। डू यू अग्री विद मी? Yes, ma'am. अब हम आ जाते हैं रीडिंग एंड राइटिंग। L1 डेवलप्स फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ब्लेंड्स। आपको मैंने ये सारे वर्ड सिखाए। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, right? Blends phonemes and syllables into words, segment words. अब आपको समझ में आया हमने क्यों ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग की बात करी थी? बिकॉज एनईपी आपको ये कह रहा है कि बच्चे की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वर्ड को तोड़ सके, वर्ड को
जोड़ सके। नमक नमक, वन वन, वन चल। ठीक है। अंडरस्टैंड्स बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ अ बुक। हमने क्या बात करी थी? ऑथर, इलस्ट्रेटर, लेफ्ट टू राइट, फिंगर पेसिंग, टॉप टू बॉटम, top to bottom, left to right, cover page, title page, move from left, hold the book from the corner। सब जो हमने आपसे बात करी है, आपने हमने जो इस ट्रेनिंग में पढ़ा है, वो सब कॉम्पिटेंसीज हैं। क्या है? कॉम्पिटेंसीज, Recognizes all the letters of the alphabet। जो भी आपका वर्णमाला है, उसके सारे लेटर्स को वो पूरे जो 5 साल है उसमें आते आते उसको ये सब कुछ पता होना चाहिए। उसको क ख ग पता होना चाहिए, उसको अ पता होना चाहिए। पर ये कितने साल में होना चाहिए? कितने साल में होना चाहिए? 5 years. 5 years. 5 years। एंड कहां पर होंगे लक्ष्मी? कौन सी 8 क्लास में? 8 years. 8 9 years. class 2. सेकेंड Second क्लास grade. में। Second grade. Second सेकेंड grade. ग्रेड। तो ये नहीं कि हमने नर्सरी में ही सब पढ़ा देना है। No, no, कुछ no. नर्सरी में पढ़ाएंगे, कुछ Which एलकेजी में पढ़ाएंगे, कुछ which यूकेजी you? में पढ़ाएंगे, और फिर कुछ 1 और 2 में पढ़ाएंगे। ठीक है। Yes. तो आप इसको अपने करिकुलम को डिवाइड करेंगे कि मेरा अगर रुचि का फोस्टर किड स्कूल चल रहा है तो रुचि डिसाइड करेगी कि मैं जितने भी वर्ण है, मैं 12 वर्ण जो हैं, व क म ब ल स, ये सारे नर्सरी में राइम्स के थ्रू पढ़ाऊंगी। एलकेजी में जाकर मैं इनकी ब्लेंडिंग सिखा दूंगी और कुछ अक्षर बच्चों को सेंटेंसेस रीड करना सिखा दूंगी। रमन घर चल, ये सब कुछ सिखा दूंगी। एलकेजी में जाकर मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स लिखने भी सिखा दूंगी। व का वक लिखो, घर चल लिखो, नमक लिखो, सड़क लिखो। ठीक है। और जब तक मेरे बच्चे ग्रेड 1 में जाएंगे तो मैं उनको स्वर सिखा दूंगी, मात्राएं सिखा दूंगी। ठीक है। और ग्रेड 2 तक मेरे बच्चे सारी मात्राएं लिख पढ़ सकेंगे। इस तरह से आपको इसको 5 साल में डिवाइड करना है। ये नहीं कि पूरा नर्सरी में सब पढ़ा देना है। चाहे आपको लक्ष्मी, एज मच एज पेरेंट्स पेस्टर यू, यू डोंट हैव टू टीच। ओके। Yes. Read stories and passages with accuracy and fluency, with appropriate pauses and voice modulation. Once upon a time, there was a king. Was there a king? Yes, yes, there was a king. Intonations हमने बात करी थी इसके बारे में। Do your work. Do your work. Right? So बच्चा क्या ऐसे पढ़ सकता है? Stories, character. All this teachers is talking about fluency in reading and writing, जो कि मैंने आपको सारा हमने अपने फोनिक सेशन में जिसके बारे में बात करी है। बच्चा लेटर्स, अपनी छोटी छोटी रेसिपीज, आपने कुकिंग क्लास कराई, लेमनेड बनाना, उसके बाद बच्चा स्टेप वाइज पिक्चर्स ड्रॉ करता है लेमनेड बनाने की। अनीता ने बोला आज हम लेमनेड बनाएंगे। सबने, कोई नींबू लाया, कोई नमक लाया, सबने घोल घोल के, जैसे हमने क्या बनाया था, कौन सा सूप बनाया था हमने? स्टोन सूप। और हमने क्या बोला था, उसके बाद हम एक्टिविटी कर सकते हैं कि बच्चे स्टोन सूप की रेसिपी लिखें। फर्स्ट टेक अ पॉट, पुट वाटर। जो बच्चा 6 साल का है वो लिख सकता है शॉर्ट सेंटेंसेस। जो बच्चा 5 साल का है वो वर्ड्स लिख सकता है, इन्वेंटिव स्पेलिंग्स लिख सकता है। जो बच्चा 4 साल का है वो पिक्चर्स बना सकता है। जो बच्चा 3 साल का है वो छोटी स्टोरीज को सीक्वेंस कर सकता है। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ma'am, may I ask one question, ma'am? हाँ जी। Ma'am, what will be the Hindi translation of competency? कौशल, कौशल। Yes, ma'am. Okay, ma'am. कौशल। स्किल मीन्स
इसको आपका मैम हम मैं कहते हैं ना स्किल L1 में डेवलपमेंट। अच्छे से समझ पाई। हाँ, कौशल विकास, कौशल यस विकास, स्किल मैम, डेवलपमेंट। गॉट इट मैम। यस मैम, यस, ओके मैम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। कॉम्पिटेंसीज के बाद लर्निंग आउटकम्स। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है टीचर्स? Yes, ma'am. अभी हमने बात किया चिल्ड्रन बिगन टू रीड एंड राइट इन L2। L2 क्या हुआ अनीता? L2 means, ma'am, L2 क्या हुआ? Other language. other language. Other कौन सी language. अदर लैंग्वेज? मैम English. इंग्लिश वगैरह जो मदर टंग से अनदर दूसरा कोई लैंग्वेज जैसे वो इंग्लिश दूसरी हुआ या L2 फिर लैंग्वेज जो है आपकी, वो कहीं पे रीजनल लैंग्वेज होती है, बट मोस्टली आजकल इंग्लिश है, यस राइट? डेवलप्स फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, राइट? अब आपने कॉम्पिटेंसी पढ़ी, डेवलप्स फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, रिकॉग्नाइज मोस्ट। ये कॉम्पिटेंसी समझ में आई सबको? यस मैम, यस मैम करिकुलर गोल पूरे साल 5 साल का है, ये चलेगा ग्रेड 2 तक। कॉम्पिटेंसीज डिवाइड होंगी ग्रेड 1 नर्सरी में, LKG में, और उसके बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे? लर्निंग आउटकम्स पे। कहाँ पहुंच जाएंगे? लर्निंग लर्निंग आउटकम। आउटकम्स में। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है टीचर्स? Yes, ma'am. अभी मैंने आपसे एक काम करवाया था। मैंने आपको बोला था A से लेकर E तक अपने ईयर्स को डिवाइड कीजिए। तो A में क्या था? 3 to 4। 4। 3 to 4 years. आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ABCDE? हाँ मैम Yes. यस Ma'am. मैम Yes, ma'am. ए कौन सा एज ग्रुप है टीचर्स? 3 3 to to 4 4 years. मैम वेरी 3 to गुड। 4 बी कौन सा है? 4 to 4 5 to years. 4 to 5, सी क्या है? 5 5 5 to 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 6. 6, फिर क्या 6 है? to 7, 6 6 to to 7 7. और फिर उसके ई क्या है? 7 7 to to 7 8 to 8. आप ये करिकुलम गोल क्या है? ऊपर पढ़ो। चिल्ड्रन Competence. डेवलप फ्लुएंसी इन in रीडिंग reading एंड and राइटिंग। writing L1. 1 कॉम्पिटेंसी क्या है? read short stories Read and short stories, compare by meaning by identify character, storyline, storyline and and what what the the author author want to wants to say say. on their own. आप इसका लर्निंग आउटकम क्या है? रीड करो। Listen to read aloud and respond to question posed by teacher. ए कैटेगरी कौन सा एज ग्रुप है अनीता? Ma'am, 3 to 3 to 4. 4. 3 to 4. वेरी गुड। तो 3 to 4 बच्चा खुद रीड कर सकता है? नहीं No. कर सकता। No, तो हम ma'am. कौन सी रीडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं? रीड अलाउड। पर Aloud. जब टीचर रीड अलाउड यूज कर रही है, तो वो उसको क्वेश्चंस पूछ रही है Yes, और ma'am. बच्चा उनसे आंसर कर रहा है, वो लर्निंग आउटकम है। या टीचर उसको पिक्चर ड्रॉ करने को बोल रही है, सीक्वेंस में लगाने को बोल रही है, वो सब उसकी लर्निंग आउटकम्स है। और जो एक्टिविटीज आपने प्लान की है, वो सारी वो ही है जो हमने बात करी है। स्टोरी कोडिंग करना, सीक्वेंसिंग करना, बुक रिव्यू देना, शो एंड टेल देना, स्टोरी को दोबारा सुनाना, क्वालिटी सर्कल टाइम पे बच्चों को राइम्स के लिए encourage करना कि अब आप क्या डालोगे, अब इसके बाद क्या हुआ था, जेम्स की पिक्चर बनाओ, जेम का एक्सप्रेशन बनाओ। ये सारी रुचि आपने एज टीचर्स एक्टिविटीज प्लान करनी है, बिकॉज इन्हीं एक्टिविटीज से आपको लर्निंग आउटकम पता चलेगा, क्या बच्चा बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा। तो क्या वो इज ही डेवलप्ड, दो जो स्किल है वो क्या डेवलप्ड है और डेवलपिंग है या नॉट येट है? Developing, still है ना? developing. तो अब Yes, जैसे मुझे लक्ष्मी, रुचि, अनीता, वंदना, इन सबको असेस करना है, तो मैंने उनको पूछा कि आप मुझे बताइए डेवलपमेंटल डोमेन्स क्या हैं। और मैंने उनको बोला कि अब मुझे बताओ ये करिकुलर गोल जो है ये कौन से डेवलपमेंटल डोमेन का है। अब मुझे बताओ ये कौन सी एक्टिविटी करोगे फ्लुएंसी को चेक करने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ,
अपनी एक्टिविटी प्लान कर रही हूँ, अपनी क्वेश्चंस प्लान करके आई हूँ, ताकि मुझे पता चले इज रुचि एट द डेवलप्ड, डेवलपिंग और नॉट येट देयर। Yes, हाउ ma'am. इज अनीता, एट व्हाट लेवल। तो लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, वो छोटे छोटे आउट आपके लर्निंग गोल्स हैं जिनसे आपको आइडेंटिफाई करते हो कि बच्चा कौन से लेवल पे है, क्या वो करिकुलर गोल के अचीव करने के कौन से लेवल पर है। ठीक है। Okay. अब देखो नेक्स्ट 4 to 5 का क्या है, पार्टिसिपेट्स इन शेयर्ड रीडिंग। एक ही करिकुलर गोल, एक ही कॉम्पिटेंसी 5 साल में डिवाइड हुई है। और जब तक बच्चा 7 to 8 grade 1 में पहुंच रहा है, क्या लिखा है, बिगेन्स इंडिपेंडेंट रीडिंग। अब बच्चा फर्स्ट सेकंड में इंडिपेंडेंट रीड कर सकता है ना, Yes, ma'am. Yes, 30 ma'am. 30 40 वर्ड्स का एक चैप्टर पढ़ सकता है। बिल्कुल पढ़ सकता अब है। आपको समझ में आया कि कैसे हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क गोल, कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग आउटकम्स फॉलो करने को बोल रहा है। सब लिखेंगे अपने नोट्स में। गोल, करिकुलर गोल्स आर फॉर ईयर, फॉर द होल ईयर। करिकुलर गोल्स किस लिए होते हैं, साल के लिए, और कंटिन्यू करेंगे 5 साल। ठीक है। कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, स्किल्स, बच्चा क्या क्या कर सकता है इन यूजिंग हिज एबिलिटीज, नॉलेज एंड एटीट्यूड थ्रू रियल वर्ल्ड, राइट। और लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, टीचर कौन सी स्ट्रैटेजीज और एक्टिविटीज प्लान करेगी जिसको करके बच्चा आपको दिखा सके कि यस वो ये कर सक, ये वो जानता है, अपनी नॉलेज एक्सप्रेस डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा। एनी Yes. क्वेश्चंस? नो मैम। गुड। So I think this is all about our Ma'am, I have a question, ma'am. yes, please. मैम जब एनईपी का मैम इतना अच्छा इनको प्लान किया गया है, बट व्हाई द बुक्स हैव सो मच मटेरियल, इतना मैम, इतना सब कुछ मैम, जैसे नर्सरी में सारा मात्राएं दे दी मैम, तो ये टू मच Sorry, Ruchi, होना चाहिए ना मैम Ruchi, ये। this is not from NEP. NEP तो पहली बार करिकुलम लेके आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आज से पहले तो सारे स्कूल्स अपना ही करिकुलम बना रहे थे। तो अगर आप मात्राएं बुक्स के थ्रू लेके आए हो, तो वो बुक्स जिन्होंने लिखी है उन्होंने अपने हिसाब से लिखी है। उसको मैम हम अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि अब हम ये पढ़ाएं, इसको आगे की क्लास यस, के लिए प्लान करते हैं। यस रुचि, यू नेल्ड इट। हमारा काम अपने स्कूल के, अपने बच्चों के लिए ये जो नॉलेज है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को खोलिए, इस पेज नंबर पे जाइए और आपको पास ये सारे करिकुलर गोल्स आ जाएंगे। आपका काम ये है कि आप ये सोचें मैंने व क ल म कब पढ़ाना है, लिटरेसी में क्या क्या कराना है, न्यूमरेसी में क्या क्या कराना है, और इसको डिवाइड कीजिए, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जितने भी आपके पास क्लासेस हैं। और आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 2 क्लासेस है मैं सब पढ़ा के भेज दूं। नो, दिस फ्रेमवर्क हैज बीन मेड फॉर 5 years, ताकि बाय द टाइम 2030 पे सारे बच्चे जो grade 1 में, जिसे हम एक्चुअली एक एंट्री लेवल ऑफ फॉर्मल स्कूल बोल रहे हैं, सब बच्चे एक लेवल ऑफ नॉलेज पे आ सके, इंडिया के, भारत के सबके पास। तभी हम इसे बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी, FLN एंड FLP, फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल न्यूमरेसी। यस गॉट इट? मैम, ये पेज है ना मैम, इसका प्रिंट आउट पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि ये बिल्कुल, हमारी प्लानिंग है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली रुचि, ताकि आप उनको बता सकें कि इट्स, दिस इज नॉट मी, दिस इज माय कंट्री यस करिकुलम, जो कि हमें बोल रहा है कि आपको ऐसे ही पढ़ाना है, और जो इसको ऐसे नहीं पढ़ा रहा वो गलत ही पढ़ा रहा है। यस Ma'am, one more question. यस,
As per Ruchi said that NEP portion syllabus is a different, and as schools are following the different process. Yeah. So why government of India not taking the action about the preschools Montessori concept? They are telling something, but all the schools are following something. So that is why 2020 NEP had come, where they had taken to just stop this unabated growth, Lakshmi, of the play schools. आपने देखा होगा कितने play schools खुलते ही जा रहे थे. It becomes so commercial. Every street, every gully, a preschool is coming. Yes, and everybody is doing major harm to children. Major harm. But even parents are not understanding also, ma'am. They are Yes, going, but who whoever is will giving na? you. Yeah. Lakshmi, but everything is commercial now. If I get money, I can sell everything. Everything is based on fear in our country. Education is based on fear. आप अपने Yes. बच्चे को नहीं पढ़ाओगे, उसका बोर्ड खत्म हो जाएगा, आपके बच्चे का करियर खत्म है. Does it ever happen? Does it ever happen? Do you buy in this? अगर 5 साल में बच्चे की स्किल्स पे काम किया जाए, you all are mothers. If his vocabulary is good, if he can express himself, definitely his cognition will be better. His cognitive development is done in a manner through the brain development, then he will perform better. बट एनईपी ने इसीलिए ही इसको अपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रोड्यूस किया है, बनाया है, ताकि और अब आने वाले टाइम पे व्हाट वी आर हियरिंग इज दैट हर एक प्ले स्कूल को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे एक सीबीएसई स्कूल रजिस्टर है. Okay. देयर विल बी इंस्पेक्टर्स हु विल कम, जो कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, जब आपकी इंस्पेक्शन होगी आपके पास लर्निंग सेंटर्स होने मैंडेटरी हैं आपके क्लास में. The art area, the art center, the music center, the play center, the creative corner, right? Because Yes. they will evaluate you based on your routines and regimes. On based on this curriculum, कि आप ये follow कर रहे हो कि नहीं? Yes. How much are you focusing on L1 and L2? और आपको मैंने तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स निकाल के दी हैं जिसमें लिखा हुआ है कि वर्णमाला पूरी नहीं पढ़ानी है. Yes, Yeah. ma'am. Remember, I showed you all this. Yes. Yes, ma'am. Right? Yes, So I know it is a very painful situation, but as teachers, let's not make it commercial. We will keep getting our money, but let's earn the money in the most child appropriate, child centric manner. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, it has been a long session, right? And Yes, it shall be counted as an extended session, dear Pratibha, because it has almost been half an hour, right? So I'll meet you on Monday, okay? Okay. And we'll talk Okay. about the numeracy, foundational Okay. numeracy, okay? Yes. Okay. Thank you. See you Happy then. weekend, ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Happy weekend. You Bye. too. Bye, ma'am.